اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ فیضان رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، مدنی مذاکروں کا فیضان ہے جاری۔ رمضان رمضان رمضان، رمضان المبارک کی رحمت بھری ساعتوں میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات۔ رمضان رمضان رمضان، نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری کی بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت۔ رمضان رمضان رمضان، ایس ایس پی ایسٹ سید پیر محمد شاہ کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضری۔ رمضان رمضان رمضان، اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول دوران مدنی مذاکرہ۔ آپ نے سوالات بھی کیے۔ عاشقان رسول نے آپ کے ہمراہ سحری و کھانے کی سعادت بھی حاصل کی۔ عبادت گزار کا چہرہ جس کے چہرے پر نور ہو، عبادت کا نور ہو، اور سبزہ اور مائع جاری بنے، بہتا پانی، یہ تینوں چیزیں دیکھنے سے حدیث پاک کے مطابق بینائی تیز ہوتی ہے۔ اس سے ایک لذیذ چورن آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بھی کافی استعمال کیا یہ آنکھوں کے لیے، انشاءاللہ آپ اس کو مفید پائیں گے۔ سونف، مصری اور ایرانی بادام تینوں ہم وزن لے کر اچھی طرح باریک پیس کر مکس کر کے بڑے منہ کی بوتل میں محفوظ کر لیجئے، اور بلا ناغہ روزانہ نہار منہ یعنی خالی پیٹ ایک چائے کی چمچ بغیر پانی کے کھا لیجئے۔ ایک چمچ سے کچھ زیادہ ہو گیا تب بھی حرج نہیں ہے، لیکن شوگر کے مریض نہیں کھا سکتے۔ طویل عرصہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایک مدنی منی کی آنکھوں میں پانی آتا تھا، بالآخر آنکھوں کے ڈاکٹر سے وقت دے لیا تھا، میں نے یہی لذیذ چورن پیش کیا۔ الحمدللہ ایک آدھ بار کھاتے ہی اس کی بیماری جاتی رہی، اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ جن کو تکلیف نہ ہو وہ بھی مستقل استعمال کر سکتے ہیں۔ گاجر کے موسم میں روزانہ ایک گاجر کھا لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ قوی اور بینائی تیز ہوگی۔ حتیٰ کہ چشمہ ہے تو انشاءاللہ نمبر کم ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ گاجر دھو لیجئے اور چھیلے بغیر کھا لیجئے، کہ چھیلنے سے اوپری تہ کے عین نیچے موجود وٹامن سی ضائع ہو سکتا ہے۔ وہ سبزیاں اور پھل جن کے چھلکے کھائے جا سکتے ہوں وہ چھلکوں سمیت ہی کھانے زیادہ مفید ہیں۔ مثلا کدو شریف، آلو، ٹماٹر، کھیرا، توری، ٹنڈے، پیٹھا، شکر قندی، سیب، چیکو، آڑو وغیرہ کے چھلکے، اور انار، موسمی کی اندرونی جھلیاں بھی کھا لیجئے۔ جو کوئی ہر نماز کے بعد یا نورو 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل بینائی سلامت رہے۔ افطار کا سما ہے، رونق لگی ہے کیسی، افطار کا سما ہے، رونق لگی ہے کیسی، چہرہ خوشی سے ہر ایک کا جگمگا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان
सीखने को मिला है अमीर अहले सुन्नत के जो है ना मुज़ाकरे और जो है ना निगरान शुरा के बयान वगैरह यहाँ होते हैं और हमारी शिरकत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पापा जान के जब लाइव मुज़ाकरा सुना तो बहुत ही अच्छा लगा। माशाल्लाह यहाँ आके पहली मर्तबा आया हूँ, मुझे इतना सुकून राहत मिल रही है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कहाँ आ सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मैंने आज बहुत कुछ सीखा, इतना कुछ सीखा जो लाइफ में आज तक पहले कुछ नहीं सीख सकता। आइंदा के लिए मेरी ये नीयत है कि मैं इंशाअल्लाह मदनी काफरों में सफ़र करूँगा और सुन्नियत के लिए जो कुछ हो सका अपने इलाके में कर भी रहे हैं और आइंदा के लिए भी करूँगा। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने बाद असर मदनी मुज़ाकरे में मदनी फूलों से नवाजा। मुख्तसरन मदनी मुज़ाकरा आप भी देखिए। कोई जुमे की नमाज के आधे खुतबे में आया या दोनों खुतबे उसके छूट गए तो नमाज जुमा उसकी हो जाएगी? हो जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक समझाता हुआ सिलसिला, नेकी की दावत, इस्लाह का पयाम, बनाम इल्म व हिकमत की बातें, मदनी चैनल पर, जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़ुज़ैल रज़ा अत्तारी अल मदनी मुद्दा ज़िल्लुहुल आली ने मदनी फूल दिए। वालिदैन जो है वो कोई काम का कहते हैं या उन्हें किसी काम की ज़रूरत है, जब दिल उनकी तरफ अटका रहेगा ना, दिल में उनका ख्याल बार बार पैदा होगा, तो आदमी को अपना रवैया ऐसा रखना चाहिए कि वालिदैन के कहे बगैर उनकी खिदमत होती रहे, उनके मुतालबे पूरे होते रहे, यानी उनको इतना राजी रखे कि वो गोया कह ही ना सके, कहने से पहले उनका काम कर दे, इस तरह तैयार है। अब वो इतना गाफिल हो गया कि वालिदैन के लिए टाइम ही नहीं निकल रहा उसके पास, फ़ोन पर बात करने का टाइम नहीं, उनसे मिलने का टाइम नहीं, उनके पास बैठने का टाइम नहीं। तो ये जो रवैया है, ये दूरी वाला रवैया, ये अच्छा नहीं है। ये एक फरमाबरदार औलाद की अलामत नहीं है। तो वालिदैन की तरफ जब दिल माइल रहेगा, उनकी अज़मत का ख्याल दिल में रहेगा कि इनके मेरे ऊपर बहुत सारे हुकूक आयद होते हैं, तो मैंने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है कि इन्होंने जैसे ही कुछ कहना है तो फ़ौरन लब्बैक कहना है, मरहबा, और इनके कहे बगैर उनकी ज़रूरतों का एहसास करना। तो ये ऐसा खिदमत का जज्बा होना चाहिए। तू तकार के ज़रिए से, अरे हो करके, अबे, अरे, इस तरह के जो बिल्कुल यानी ऐसे अल्फाज होते हैं जो वालिदैन के शाया निशान बिल्कुल नहीं होते, खिलाफ होते, उनसे तो इज्तिनाबी करना पड़ेगा। पहला ये ठीक है। दोस्ती वगैरह का जो सिलसिला होता है, वो पता होता है कि वालिद से अगर दोस्ताना ताल्लुक भी है ना, तो वो वालिद से है, वालिद का एहतराम उस दोस्ताना ताल्लुक में भी मलहूज रहेगा। ठीक है। बेतकल्लुफी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी कि जो बेअदबी तक जाएगी। बेतकल्लुफी का मतलब ये है कि अपनी जो ज़रूरतें हैं वो वालिदा से, वालिद से जो है वो बिला झिझक कह सके, अपना प्रॉब्लम है बयान कर सके। एक होता है जिसको शर्मीलापन कहते हैं, सही, ये अभी वो बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये एक ऐसा शर्मीला है जो बात ही नहीं करता, सही तरह अपना मसला ही नहीं बताता। इससे भी तो मसाइल जन्म ले लेते हैं कि भाई एक जो है वो बेटा ऐसा है कि वो इतना शर्मीला है कि सही तरह वालिदैन के सामने अपनी बात ही बयान नहीं कर पा रहा, सही, वालिदैन इसलिए परेशान बैठे हैं, पता नहीं इसके साथ क्या मसला क्या है। तो भाई इस तरह का जो शर्मीलापन है वो भी ठीक नहीं, एतदाल होना चाहिए ना, बेअदबी की तरफ नहीं जाना। सिलसिला फैजान सहरी में निगरानी शुरा ने डॉक्टर्स के हमरा शिरकत फरमाई। डॉक्टर्स ने मदनी चैनल पर आने वाली कॉल्स का जवाब दिया। सिलसिला इख्तिसार के साथ पेश खिदमत है। मैदे से मुतालिक मज़ीद क्या मालूमात डॉक्टर साहब हमें फराहम करते हैं? जी डॉक्टर साहब, आज हम मैदे की बीमारी अल्सर उसके ऊपर बात कर रहे हैं, या तेज़ाबियत जो अमूमन सीने पे हो जाती है उसकी बात कर रहे हैं। उसके असबाब यही हैं कि जो खाने पीने की अशिया हैं उसके अंदर तेज़ मेज़ मसाले वगैरह जो होते हैं वो होते हैं, और ये बाज़ औक़ात बड़े नुकसान का सबब भी बन जाते हैं। इसकी अलामात में यही होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले जो है सीने में जलन वगैरह की शिकायत हो जाती है, जो आम तौर पे बहुत लाइटली हम लोग लेते हैं, बहुत आसान से लेते हैं कि कुछ भी दवा वगैरह इस्तेमाल करके हम उसको ठीक कर लेते हैं, हम उसका मुतवातिर इलाज नहीं कराते, उसके असबाब नहीं देखते, फिर उसका हम लॉन्ग स्टैंडिंग ज़्यादा अरसे तक वो चलता रहता है। फिर एक स्टेज ये आती है कि उसकी वजह से अल्सर जो है उसमें से खून बहना शुरू हो जाता है। फ़र्ज़ करें कोई ऐसी अद्वियात वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे खुदा न खास्ता जोड़ों में तकलीफ़ हो रही है किसी के, या कोई और ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से दर्द की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। जब दर्द की अद्वियात वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो अल्सर जो मैदे में ज़ख़म बन चुका होता है उसके ऊपर जाके वो ऐड करती है और वहाँ से खून बहना शुरू हो जाता है। दूसरी अलामत आती है, वो आती है पेट में दर्द की, यानी कि आपके सेंटर पेट में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। अगर हम मरीज़ से बात करते हैं कि आपको कहाँ तकलीफ़ होती है तो वो उंगली का पॉइंट करके बताएगा कि आपको इस जगह पे तकलीफ़ होती है।
तीसरी अलामत उसकी आती है कि उसको उल्टियाँ आने लग जाती हैं या फिर मतली की कैफियत होने लग जाती है, खाने को दिल नहीं करता उसका, जिसको अल्सर होता है। जी। डेटा एक ये भी है कि हर 10 में से एक बंदे को ये प्रॉब्लम मौजूद है, अल्सर की। अल्सर। स्ट्रेस अल्सर से बचने के लिए तो बहुत आसान सा तरीका है कि अपना जो भी लाइफ स्टाइल है उसका एक जदवल बना लें, उसका एक शेड्यूल बना लें आप। स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस इसी वजह से होता है कि आपका शेड्यूल नहीं बना हुआ था, और शेड्यूल के हिसाब से फ़र्ज़ करें कि आप सुबह उठे हैं, जल्दी जल्दी आपको ऑफिस जाना है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपने जल्दी से नहीं उठे हैं, नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता हाथ में लिया है, जल्दी जल्दी आपने उसको खाया है। अब जितनी तेज़ी के साथ उस खाने को आप खाएंगे, लाज़िम बात है कच्चा पक्का जैसा है वो पेट में जाएगा। अब वो पेट में जाने के बाद मैदे के अंदर जब वो जाएगा तो मैदा का जो काम है उससे ओवरलोड भर के उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको क्रश करना पड़ेगा। हमें तमीज़ भी नहीं आएगी कि ये कच्चा पक्का क्या होता है। पक्का हुआ तो ठीक है, खा लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि चीज़ कच्ची रह गई है तो बराए करम इसको पेट में ना डालें। कच्ची चीज़ मतलब कैसे बंदा हजम करेगा? ये भी बात होती है कि जब आप चबा के खा रहे होते हैं तो आपके मुंह के अंदर से लुआब में से कुछ एंजाइम्स ऐसे सिक्रीशंस के निकलते हैं जो उसके हजम करने में उसको मदद देते हैं। इंग्लिश का एक मुहावरा है जैसे ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर वाटर। खाना पूरी तरीके से पका हुआ नहीं होता है। खाना खाने से पहले की जो एहतियातें होती हैं, हाथ धोने का तरीका होता है, हाथ धोया नहीं जाता। ये वाली चीज़ें जो हैं इसकी वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से ये अल्सर की प्रॉब्लम होती हैं, और ये ही कॉजेटिव एजेंट बनता है अल्सर की कॉम्प्लिकेशन बनाने का, यानी जब ब्लीडिंग हो गई, कैंसर हो गया। खाना अच्छी तरह चबाइए, अच्छी तरह चबाइए। बच्चों को अभी से तरबियत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चों को पेट और मैदे की बीमारी कम से कम होगी। निगरान शुरा ने सिलसिला साइड इफेक्ट में मदनी फूलों से नवाजा, नुकसानात से आगाह करते मदनी फूलों से आप भी हिस्सा पाइए। हमारा आज का मौजू है कोल्ड ड्रिंक के साइड इफ़ेक्ट। नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक जो भी होती हैं ये मीठी होती हैं, मीठा मशरूब होता है ये, और भी इसमें कई अज्जा होते हैं। हम वन बाय वन जो हमसे इस सिलसिले में हो सकेगा हम उसको अपनी गुफ्तगू में लाने की कोशिश करेंगे। सेक्रिन पर तो बाज़ ममालिक में पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि सेक्रिन के इस्तेमाल से मसाने के कैंसर होने की इत्तिलात मिलती है। बरतानिया के अंदर बच्चों के दांतों के बारे में किए जाने वाले एक सर्वे से ये साबित हुआ कि कोल्ड ड्रिंक के शौकीन 20% जो बच्चे थे, यानी हर 5वें बच्चे के दांतों में हिफाजती तेज जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में एक इंसानी दांत रखा गया तो वो दांत नर्म और भुरभुरा हो गया। फास्फोरिक एसिड ये कोल्ड ड्रिंक में डाला जाता है। इस तरह मैदे में तेजाबियत पैदा होती है, हजम का अमल सुस्त पड़ता है और ग़िज़ा देर से हजम होती है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बज़ाहिर बोतल का कोई प्लस नहीं है सिवाय इसके कि आपको एक टेस्ट मिलता है। निगरान शुरा की ये है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनको अगर दूध में मिलाकर, जैसे दूध सोडा मिलाकर जिसको इसका कोई साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा? एडवाइस करवा रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैर। सोडा का अपना साइड इफेक्ट है मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सोडा का अपना साइड इफेक्ट है। यानी मुझे तो ऐसा गुमान है, आपको डॉक्टर साहब लाइन पर आएँ और डॉक्टर साहब कोई मशवरा दें तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो स्टडी है वो ये बताती है कि शायद सोडा मिलाने से जो दूध के फ़वाइद है वो शायद ख़त्म हो जाते होंगे। आधे सर का दर्द, याददाश्त की कमज़ोरी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, मिर्गी, मतली, दस्त, नज़र की कमज़ोरी और जिल्द पर ख़ारिश, ये चीज़ें उमूमन इस तरह के मीठे मशरूबात वगैरह दे रही होते हैं। यानी बाज़ ममालिक के अंदर बाद मशरूबात पर बैंड है, हम कोई भी नाम नहीं लेना चाहते आपके सामने। ये नई बोतल आई है ये ले जाइए, अच्छा नई बोतल आई है ले जाइए, घर में गए ये नई बोतल आई है ले लीजिए, नया पाउडर आई है ले जाइए, नई चीज़ आई है ले जाइए, नई प्रोडक्ट आई है ले जाइए। हमने ये नई चीज़ें ले ली, लेकिन क्या कभी हमने ये नई चीज़ लेते वक्त ये गौर किया कि ये नई चीज़ सेहत के लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह है? मैं तो वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी औलाद का जहन बनाएं। आज निगरान शुरा ने जो कोल्ड ड्रिंक के बारे में साइड इफेक्ट्स इसके बताए हैं, इससे हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह जहन बनाया कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज से हम अपने घर में इन कोल्ड ड्रिंक का दाखिला इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बंद कर देंगे इंशाअल्लाह। मदनी मुज़ाकरे से कबल निगरान शुरा ने मदनी फूलों से नवाजा, खूबसूरत अंदाज से दिए गए मदनी फूल आप भी चुन लीजिए। बाज़ लोगों की आदत होती है कि बात को बड़ा लंबा करते हैं, बार बार एक चीज़ को रिपीट करना ये हरगिज़ मुनासिब नहीं होता। बातों का लोग बोर हो जाते हैं, हर बार झाड़ना, हर बार
टोकना, हर बार डांटना, ये मुनासिब नहीं है। इससे आपकी बात का वजन खत्म हो जाएगा। बीवी को चाहिए कि शोहर के साथ अगर बात करती है तो बड़ी मुख्तसर सी बात करे, इससे आदमी बोर हो जाता है। क्या एक बात को बार बार आप रिपीट कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो। छोटे से मैसेज के अंदर 20 25 मरतबा आप उसका नाम ले रहे हैं। एक बात शुरू में लिखते हैं, बीच में भी वही बात लिखते हैं, आखिर में वही बात लिखते हैं, उसके बाद नीचे भी दिल नहीं भरता तो वही बात लिखते हैं। बहुत ही नपे तुले अंदाज में कलाम करें, बहुत ही मुख्तसर सा कलाम करें। बेजा बहस से, बेजा तकरार से, बेजा उलझने से बचेंगे, अपना ही भला करेंगे। इससे कीना भी बढ़ता है, इससे बुग्स भी बढ़ता है, इससे दिल में मेल भी पैदा होता है। मुफ्ती साहब दारुल तहले सुन्नत में हाजिर हो गया हूँ। माशाअल्लाह। बराए करम का जवाब दीजिए कि ये लोग, ये नाई जो होते हैं, ये लोगों की जो दाढ़ी जो है शेव करते हैं, क्या इनका जो है शेव करना जायज है या नाजायज? बराए करम इसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए। ये फेल जो है वो हराम फेल है। तो अब कोई शख्स इस काम के अंदर जो है वो मुआवनत करता है और ये काम जो है वो किसी फर्द के लिए बजा लाता है, तो ये भी गुनाह पर मुआवनत है और इससे हासिल होने वाली आमदनी भी हराम कहलाएगी। क्या हम जब अकेले में फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो उसमें तकबीर लगाना लाजिम है या तकबीर के बगैर भी नमाज हो सकती है? दूसरा सवाल यह है कि क्या जुम्मे की फर्ज नमाज के बाद हम जो सुन्नत रकाते हैं, 2 सुन्नत रकाते, 4 सुन्नत रकाते और 2 नफल हैं, वो घर में आके पढ़ सकते हैं? इकामत जो है वो जमात के लिए होती है, मुनफरिद के लिए इकामत नहीं होती। फर्ज मस्जिद में पढ़ने के बाद सुन्नतें घर में आके पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन यह है कि रास्ते में कहीं भी रुके नहीं और कोई भी ऐसा काम ना करे जो घर आने के अलावा कोई किसी और चीज में शुमार होता हो। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स मोटरसाइकिल पे जा रहा है और बारिश की जो है वजह से किसी तरीके से अगर उसके मुंह में पानी दाखिल हो गया और गला के नीचे उतर गया, तो रोजा में क्या कोई किस्म का मसाइल होगा? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, रोजा तो चला जाएगा, नो डाउट, लेकिन यह है कि ये शख्स गुनाहगार नहीं होगा। हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाआत का मुख्तलिफ मकामात पर सिलसिला आपको दिखाते हैं। आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला हुआ। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे। निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना हाजी शाहिद अत्तारी ने बाद फजर मदनी हल्के में मदनी फूलों से नवाजा, जबकि आशिकान रसूल ने आपके हमरा सहारी की सआदत हासिल की। नीज आपने मुअतकिफीन को अपने मदनी फूलों से नवाजा। अश्कों से दिल के गुलशन सैराब हो लगेगे, अश्कों से दिल के गुलशन, हर जुर्म धुल रहा है, रमजान आ गया है, हर जुर्म धुल रहा है, रमजान आ गया है। कोई सर्रा गर्दिश कर रहा है, अल्लाह उसको भी जानता है, अल्लाह को उसकी भी खबर है, उसका भी पता है। और सूरह मुल्क में फरमाता है अला यअलमु मन खलक, क्या वो ना जाने जिसने पैदा किया? खालिक ही वही है, सबका खालिक वही है, हर चीज उसी ने पैदा की है, वो क्यों ना जाने? जानता है, वो सबको जानता है, हर जानदार और बेजान सबको जानता है। बहरहाल तो मोबाइल का मिसयूज यहाँ करें या वहाँ करें ठीक नहीं, और यही दरख्वास्त है कि आपके भले के लिए अर्ज किया जा रहा है। आप मिसयूज करेंगे, गुनाहों बरा इस्तेमाल करेंगे तो मुझे गुनाह थोड़ी मिलेगा, आप ही को मिलेगा। मैं तो हमदर्दी में आपको कह रहा हूँ। और इस इस्लामी भाई ने माशाअल्लाह तवज्जो दिलाई, वो सीखने सिखाने का हल्का मदनी मुज़ाकरा कितना ज़बरदस्त। रमज़ान 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 फैज़ान रमज़ान रमज़ान रमज़ान
रहमत गई है कह के आंगन खुशी से महके के, रहमत गई है कह के मिलने लगी शिफा है, रमजान आ गया है, मिलने लगी शिफा है, रमजान आ गया है। रमजान रमजान रमजान। SSP ईस्ट सैयद पीर मोहम्मद शाह ने आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में कायम मदनी चैनल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। मजलिस राब्ता के इस्लामी भाइयों के हमरा मुलाज़ा कीजिए। मदनी चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो, मदनी चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो, आम दुनिया भर में या रब दीन का पैगाम हो, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार, कुफर के ऐवान में मौला डाल दे ये ज़लज़ला, कुफर के ऐवान में मौला डाल दे ये ज़लज़ला, या इलाही ताअबद जारी रहे ये सिलसिला, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार, इसमें है फैज़ान कुरान, इसमें फैज़ान हदीस, इसमें है फैज़ान कुरान, इसमें फैज़ान हदीस। आज फैज़ान मदीना विज़िट किया हमने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से सिक्योरिटी के इंतज़ामात चेक करने, तो इसी हवाले से मदनी चैनल पर आना हुआ और इंतहाई खुशी हुई कि जब यहाँ की मैंने इंतज़ामिया से मुलाकात की और पूरे शोबा हाय जो चैनल हैं उनका मैंने विज़िट किया। तो बाकी भी मैंने काफ़ी सारे चैनल्स का विज़िट किया हुआ है, लेकिन मैंने जो चीज़ यहाँ देखी कि यहाँ पे बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और यहाँ के जो शोबाजात हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नज़र आया और डेडिकेशन है यहाँ के स्टाफ में, जो आम तौर पर एक जहन में लोगों का ख्याल होता है कि शायद जो मज़हबी चैनल है वो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होगा, लेकिन वो यहाँ आके मुझे फ़ील हुआ क्योंकि यहाँ की जो नशरियात है न सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया के 90% इलाक़ों में मुख्तलिफ़ सेटेलाइट्स के थ्रू नशर की जाती हैं और उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो लैंग्वेजेस हैं उसमें डबिंग भी करके और इस्लाम को और दीन के पैगाम को फैलाया जा रहा है। फिर सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, जो कुछ है बस दीन की खिदमत है और यहाँ पे कोई जिस तरह टाइम्स होते हैं, हॉट स्पॉट्स होते हैं, हॉट टाइम्स होते हैं और प्राइम टाइम्स होते हैं जिसमें कमर्शियल्स को अट्रैक्ट करके और रेवेन्यू को अर्न किया जाता है, इस तरह का कोई भी सिस्टम यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आया। अगेन ये एक बहुत बड़ी खिदमत है दीन की, ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनको जो दिल है वो इस हवाले से सरशार हो, मोहब्बत हो दीन की। तो इनको हेड्स ऑफ टू द टीम एंड द मैनेजमेंट जो इतने बड़े चैनल को चला रहे हैं और इतने सिस्टम को उन्होंने न सिर्फ कायम किया है बल्कि उसको एफिशिएंटली रन भी कर रहे हैं। सो आई विश ऑल ऑफ देम ऑल द बेस्ट। मदनी चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो, मदनी चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो, आम दुनिया भर में या रब दीन का पैगाम हो,
مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں ناصر اتاری المدنی کی عیادت کی۔ آپ نے خیر خواہی فرماتے ہوئے انہیں اسپتال میں ایڈمٹ کروایا، جبکہ مدنی چینل کے کیمرہ مین اسلامی بھائیوں کے انچارج اشتیاق بھائی کے گھر جا کر ان کے لیے دعائیں صحت کی۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے ناصر مدنی یہ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلاس فیلو بھی رہ چکے ہیں، ان کے ہم درجہ رہ چکے ہیں، اور ان کو بھی ہیٹ اسٹروک ہو چکا ہے، اور ہاسپٹلز میں گئے تو ہاسپٹل میں بھی ان کو رکھنے سے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس بیڈ نہیں ہے۔ مجھے پتہ چلا تو ان کے گھر حاضر ہوئے ہیں، بیر روحا کا پانی بھی انہیں پیش کیا ہے۔ باپا ایک تو خاص ان کے لیے دعا فرما دیجیے، کافی غمزدہ بھی ہیں اور بہت زیادہ نڈھال بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کو ہاسپٹل میں لے جانے کی ترکیب بناتے ہیں، آپ خاص ان کے لیے دعا بھی کر دیجیے گا۔ آپ بھی امیر علیہ سنت سے کچھ فرما دیجیے، یہ عرض کر دیجیے۔ پاپا میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کے لیے مجھے زندگی عطا فرما دے۔ ابھی تک کوئی کام کر بھی نہ پایا، اور جو کیا اس میں اخلاص نہیں پاتا۔ پاپا ابھی دل میں نیت یہ رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر زندگی ملی تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے اپنی زندگی میں کاش کوئی ایسا کام کر لیا ہوتا کہ رب کو راضی کر لیا ہوتا۔ پاپا میں نے اپنی زندگی گنوا دی، پاپا میرے لیے دعا فرما دیجیے، پاپا میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ما فی علم اللہ صلاة دائمۃ بدوام۔ اے شفا دینے والے، اے شفا دینے والے مولا، ہمارے ناصر بھائی کو شفا کاملہ عطا فرما، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما، ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ انہوں نے اب تک جو دین کی خدمت کی ہے، جو کتابیں لکھی ہیں، مولا تالیف کی ہے، اے اللہ ان تمام کوششوں کو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا، ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا، ان کے علم و عمل میں، ان کے گھر بار میں برکت عطا فرما۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے مدنی چینل کی جو ای این جی ڈپارٹمنٹ ہے، جو سارے کیمرہ مین وغیرہ ہیں، ان کے ہیڈ اور ہمارے بہت سینئر ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اشتیاق بھائی کافی شدید بیمار ہیں، کئی دنوں سے بستر پر ہیں۔ واپس سارے ڈاکٹروں کے ٹیسٹ وغیرہ کرائے، ٹیسٹوں میں سب اوکے آ رہا ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا، وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے، بیماری بھی ڈائگنوس نہیں ہو رہی، کچھ روحانی پرابلم بھی بتا رہے ہیں لوگ۔ تو باپا آپ ان کے پیر و مرشد بھی ہیں، آپ سے التجا ہے خاص ان کے لیے دعا فرما دیں۔ ہمارے بہت قیمتی اسلامی بھائی ہیں کہ اللہ پاک ان کو شفا کامل عطا فرمائے۔ اشتیاق بھائی آپ بھی کچھ باپا سے عرض کر دیں۔ باپا میرے لیے دعا فرما دیں، بس یہی عرض کرتا ہوں کہ میری بیماری جلد سے جلد دور ہو جائے۔ سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ بنگلہ دیش میں دیکھیے ماہ سیام کی کیسی ہیں برکتیں، جہاں عاشقان ماہ رمضان مناجات میں بھی شریک ہیں اور مختلف مدنی کاموں کا بھی سلسلہ ہے۔ بنگلہ دیش جہاں جانے کی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بھی خواہش کا اظہار کیا، کچھ مناظر وہاں سے دیکھیے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان
रहमत मिलेगी सभी को, बख्शिश मिलेगी सभी को, रहमत मिलेगी सभी को, ये कह रही हवा है रमजान आ गया है, ये कह रही हवा है रमजान आ गया है। रमजान 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 फैज़ाने रमजान 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 फैज़ाने रमजान। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, आज एक इस्लामी भाई की दुकान पर मुनाजात इफ्तार की, अल्हम्दुलिल्लाह मुनाजात इफ्तार की तरकीब थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई इसमें हाजिर हुआ, हमारा एक इस्लामी भाई ये तासुरात दिया जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुआ इज्तिमा में हाजिर होकर। इफ्तार इज्तिमा कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा है और इससे बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इफ्तार इज्तिमात और मुनाजात में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों की कोशिशें देखिए। कुतुब मदीना हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा की शहर ज़ियाकोट पंजाब पाकिस्तान से, जहां इस मजलिस के तहत सुन्नतों भरे इज्तिमात का सिलसिला हुआ। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा' वजब शुक्रु अलैना मदअ लिल्लाहि दा'। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा' वजब शुक्रु अलैना मदअ लिल्लाहि दा'। मैंने दावत इस्लामी के माहौल में आके, इससे फ़िज़ाने कुरान और हदीस कोर्स में आके वज़ू के फ़ज़ाइल, गुस्ल के फ़राइज़ और बहुत कुछ सीखा। दावत इस्लामी के चंद इस्लामी भाई मेरे पास है, उन्होंने मुझे तरकीब दिलाई कि इस माहौल में, इस कोर्स में आके आप बहुत कुछ सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल मैंने इस माहौल में आके बहुत कुछ सीखा और इंशाअल्लाह इसी तरह सीखते रहेंगे। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा' वजब शुक्रु अलैना मदअ लिल्लाहि दा'। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा' वजब शुक्रु अलैना मदअ लिल्लाहि दा'। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा' वजब शुक्रु अलैना मदअ लिल्लाहि दा'। बहुत अच्छा मदनी माहौल है इसमें, और ये दावत इस्लामी का काम पूरे मुल्क में हो रहा है। इसमें तालिब इल्म भी पढ़ते हैं और दीनी काम भी हो रहे हैं, मदरसे भी हो रहे हैं। और आप लोगों से गुजारिश ये है कि इस रमज़ान में अपनी ज़कात जो है ना वो दावत इस्लामी को दें, ताकि वो अपने काम जारी रख सकें। दावत इस्लामी का एक इज्तिमा अटेंड किया। इज्तिमा के बाद मेरी बहुत सी गलत फहमियाँ जो है वो दूर हुई। मुझे पहले लगता था कि दावत इस्लामी सिर्फ मदनी चैनल वालों और सब्ज़ इमामा पहनने वालों की ही है, लेकिन इस इज्तिमा के बाद पता चला कि दावत इस्लामी कितना प्रैक्टिकल वर्क कर रही है। ये डॉक्टर्स का इज्तिमा था जिसमें बयान करने वाले एक इस्लामी स्कॉलर थे, लेकिन उनका बयान सुन के ये लगा कि ही इज़ डॉक्टर, लगा कि वो हमारी तरह डॉक्टर हैं। मतलब कि ये सिर्फ एक मौलवियों की, सब्ज़ इमामा पहनने वालों की या एक लिमिटेड जमात नहीं है। इसके काम को, इसके प्रैक्टिकल वर्क को देखकर मैं बहुत मुतासर हुआ। मुझे लगता है कि दावत इस्लामी पूरी दुनिया में जिस तरह फैली हुई है, ये दीन के काम को और मज़ीद बढ़ाती जाएगी और इंशाल्लाह हम इसका साथ देंगे। हम और मेरे पूरे कोलीग्स बहुत मुतासर हैं दावत इस्लामी से और बहुत सी मिसकंसेप्शंस इस इज्तिमा ने दूर कर ली। अभी मदनी इज्तिमा अटेंड किया, उसमें माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और बयान से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके अलावा जो कुछ सोचा हुआ था उससे काफ़ी बढ़ के जो है हमें सीखने को मिला। उनके बयान था
उसे पता चलता था कि ये हर चीज़ को कवर कर रहे थे। और ये अभी हम सब नौजवानों पर अमीर अहले सुन्नत का साया है, जिनकी बदौलत, जिनकी दुआओं की बदौलत हम सब जो है वो ये सब कुछ सीखने को, सुनने को मिल रहा है और नेकी की दावत दी जा रही है। तो इसी की बदौलत हम सब जो है वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मजलिस दारुल मदीना के तहत सरपरस्त इज्तिमा की कुछ मनाजिर दाता पिया आली रहमा के शहर मरकजुल औलिया लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान से। दावत इस्लामी की सारे जहां में मच जाए धूम, सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। आज की फिक्र मदीना फरमा लीजिए और दावत इस्लामी की पिछले दिनों की मदनी खबरें मुलाजा फरमाना चाहें तो हमारी वेबसाइट dawat-islami.net को विजिट कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा